Okay, Vedant, Kadambari, Ayush. All right. Okay. Yes, Ayush, Kadambari. What is the situation at your end? Okay. Hello. Guys, is my voice clear to all of you? Okay. Just wait. Okay. So I have rejoined. So is it fine now? Okay, Ayush. Okay, thank you, thank you. So I'll just share my screen and you will just confirm whether it is visible or not. Okay, fine. So is it visible? Okay, Ayush. Okay, okay. Okay. If any problem comes, okay, in my voice or any breaking over there, kindly write down the chat box or rejoin. So guys, here we go for our textbook, right? So which lesson we are studying right now? The lesson is economic development, right? Okay, okay, okay. So in the economic development, what we have seen? We have seen economies, mixed economy. What are different sectors in the mixed economy? Why we adopted that economy? After that, we studied why planning commission was set up or established so that we can plan for 5 years, next 5 years, and we can act. Our country can act according to that to achieve different goals. So for that, different 5 year plans were initiated, okay, and decided to implement. So one by one, we have seen, I think, almost 7 5 year plans, right? Okay. So we have seen about 7 5 year plans. Now 8 and 9 number are to go. Okay, we are going to look for that. Okay. So till now, anybody who has revised the topic, any doubt for them? Okay, कोणी कोणी टॉपिक रिवाइज केलेला आहे? Okay, so can I ask questions based upon that? Okay. Okay, so tell me what are different sectors of mixed economy? Can you tell me? I will just wait for your answer for 30 seconds. Okay. Write it down here. What are different sectors of mixed type economy? You know what is mixed type economy? And there in that there is a
what we can say sectors, okay, that are included in the mixed type of economy. ओके, तर आपण काय केलंय, मिक्स्ड इकॉनॉमी जी आहे आपल्या देशामध्ये, आपण कोणकोणत्या प्रकारच्या इकॉनॉमीज माहित आहे आपल्याला? कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी, socialist economy, and third one is mixed type of economy. So can you just tell me, uh, okay, what are the sectors of mixed type of economy? Okay, Ayush is saying private sector, public sector, and next is what? Okay, so Ayush has given correct answer. It is private sector and public sector, and I would add one thing, that is joint sector. Yes, Kadambari has given the answer that joint sector is also in that. Okay, so now what will we do? We will go for our teaching. Okay, see here the question, mixed public sector, private sector, and joint sector. All right, I know you might have gone through the book and then you found out the answer, right? But no worries. So we have seen about 7th 5-year plan or sixth 5-year plan. Okay, so we have seen that in the 6th 5-year plan, following programs were implemented. Okay, in the 6th 5-year plan, these are the programs that were implemented in 6th 5-year plan. Okay, now we will now see about the 7th 5-year plan. Okay, so 7th 5-year plan was from 1985 to 1990. Okay, 5 years. All right, so this plan laid stress on food, employment and productivity. ओके, म्हणजेच काय आहे, 7व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये भर हा कशावर देण्यात आला? जास्त भर हा फूड आणि एम्प्लॉयमेंट आहे, त्याची प्रोडक्टिव्हिटी कशी वाढेल या गोष्टीवर देण्यात आला. दी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द प्लान इन्क्लुडेड. ओके, तर हा जो काही पंचवार्षिक प्लान होता, 7वा पंचवार्षिक प्लान, तर याचे मेजर ऑब्जेक्टिव्ह कोणकोणते होते, उद्देश कोणकोणते होते? सो द फर्स्ट वन इज डेव्हलपमेंट. So development is also common in everyone, every 5-year plan. Modernization, okay, this is something new. Self-reliance is also a common objective for every 5-year plan. Social justice is also there, improving the techniques of production. Okay, this is seems to new. Okay, हा काही एक नवीन ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला दिसत आहे. To achieve an yearly increase in national income by of 5% and increase food grain production. Okay, सो एक नया टारगेट सेट किया गया था कि हमारा नेशनल, हमारे कंट्री का जो इनकम है, देश का जो इनकम है, ओके, ये 5% से इंक्रीज करना है. मतलब अगर पिछले साल 100 रुपए हमारे देश में अगर रेवेन्यू जनरेट होता है और इनकम आता है, तो इस अगले साल कितना करना है? 105, मीन्स 5%. So there are programs, following programs were started in this plan. Okay, so in the 7th 5-year plan we have seen the objectives. Now we will see. Okay, Kadambari, is my voice still breaking? Oh, Kadambari, it is fine for Ayush and Vineet. I think you might have some problem. Okay, Vedant is also facing the same issue, right? Okay, guys, see, if my voice is reaching to one people, okay, even one people, then it means the network coverage at my area is good, but there's a problem at your end. Okay, fine. Okay, guys, so Kadambari is just rejoining and refreshing the network. Okay, Vedant, okay, fine. So guys, we have seen the objectives that are included in the 7th 5-year plan. Now we will see, to achieve this objective, which plans were implemented throughout the country. Okay, जो ऑब्जेक्टिव हमने अभी देखे, उनको हमें अचीव करने के लिए
कौन कौन से जो प्रोग्राम से स्कीम से वो हमने लॉन्च की उस वक्त की गवर्नमेंट में, मतलब 1985 से लेकर 1990 तक। फर्स्ट वन इज जवाहर रोजगार योजना. Okay, it means it was for the employment generation. After that, Indira Awas Yojana. Okay, basically it is for home. Scheme of 10 lakh wells. It means government decided that government will help people. Okay, to dig a well. मतलब जो कुआ खोदने के लिए, विहीर खोदण्यासाठी गव्हर्नमेंटने एक टार्गेट ठेवलं की आपल्या देशामध्ये जवळपास या 5 वर्षामध्ये 10 लाख विहिरींची निर्मिती झाली पाहिजे. ओके, so the seventh five-year plan proved to be important from the point of view of employment generation. Okay, so as I told you that Jawahar Rozgar Yojana was implemented in this 5-year plan. Okay, so that's why this program was important from the point of view of employment generation. All right, guys, so this was all about the 7th 5-year plan from 1985 to 1990. Okay, guys, so is it clear to everyone? Hello. 7th 5-year plan. Okay, Vinith. Okay, Kadambari. Fine. Now next one is 8वी पंचवार्षिक योजना, म्हणजेच 8th 5-year प्लान. ये कब से शुरू हुआ? 1992 से 1997 तक. ओके, मतलब बीच में से जो 2 साल थे, these 2 years was very bad for our country. Okay, means 1991 and 1992 we can say, or 1991, it was very bad year for India because we our country was left with nothing in their forex reserve. ओके, हमारे पास जो सेविंग्स होती है कंट्री की, ओके, हमें जो कुछ इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट क्या करते हैं हम? कभी कभी फूड इंपोर्ट करते थे उस वक्त. आफ्टर दैट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल, डीजल, ओके, उसको हमें इंपोर्ट करना चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? हमारे पास सेविंग चाहिए, और वो वी कैन यूज दैट मनी टू buy the products from outside world. But in 1991, situation was such that forex reserves were gone down to a level that we can just import the essentials commodity for 15 days only. मतलब फक्त ओके, मतलब सिर्फ 15 दिन के लिए हमें वो पैसे पूरे पड़ते. ओके, वो पैसे सिर्फ 15 दिन में ही खत्म हो जाते. इस तरह का सिचुएशन हमारे देश में उस वक्त आया था. सो शायद इसीलिए उन्होंने 8वां जो 5-year प्लान है वो 1992 से 1997 तक किया. ओके, so guys, you understand this? Good. Now, what is in the 8th 5-year plan? This plan gave a lot of scope to private sector. Okay, so guys, situation क्या थी हमारे देश में 1990 तक? क्या सिचुएशन थी कि बहुत सारे इंडस्ट्री जो होती है, बहुत सारे बिजनेस जो होते हैं, वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा था. सब कुछ कंट्रोल इट वाज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. एंड कोई भी अगर किसी को भी अपना छोटा भी बिजनेस शुरू करना होता था, तो उसको बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती थी. गवर्नमेंट कभी कभी परमिशन भी नहीं देती थी, क्योंकि उस वक्त हमारी सोशलिस्ट पॉलिसीज थी, और गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है, सो वो बहुत ज्यादा था किसी भी बिजनेस में. ओके, उसकी वजह से जो बिजनेसेस है फल फूल नहीं सके, हमारे देश में ज्यादा बढ़ नहीं सके. ओके, इसी वजह से आज हम जो चाइना कहते हैं कि चाइना हमारे आगे कैसे गया, तो यही जो चीज थी. ओके, जो चीज हमने 1991 में की, ओके, 1991 में की, वो चीज चाइना में 20 साल पहले हो चुकी थी. ओके, नो, 10-15 साल पहले हो चुकी थी. ओके, चाइना में. इसी वजह से चाइना इज वे अहेड ऑफ इंडिया. ओके, तो क्या हुआ, 1991 में हमारे देश में एक कानून पास किया जिसमें हमने बहुत ज्यादा जो बड़े सेक्टर थे उसमें प्राइवेट जो प्लेयर थे,
प्राइवेट जो पब्लिक थी उनको उनके बिजनेस करने के लिए बहुत सारी छूट दे दी कि हाँ आप सभी सेक्टर में अपना अपना बिजनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगी. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट दिस प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप टू प्राइवेट सेक्टर. द प्लान हैड फॉलोइंग फीचर्स. ओके, इस प्लान में कौन कौन से फीचर थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ओके, और ऑब्जेक्टिव्स थे. So the first one was to maintain the rate of growth in national income at 6.5%. ओके, मतलब 6.5% से हमारा नेशनल इनकम, नेशनल जो ग्रोथ है, ओके, वो बढ़ानी. ओके, हम बोलते हैं ना जीडीपी का ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट जो बोलते हैं हम, उसे कितना करना था, 6.5%. टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ओके, हमें पता था कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा बढ़ रही है. सो टू कंट्रोल द पॉपुलेशन वाज आल्सो वन ऑफ द गोल. ओके, जिस प्रकार हम कहते हैं कि हमारी कंट्री बहुत यंग है, ओके, लेकिन अगर उस यंग कंट्री को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, ओके, तो ये यंग पॉपुलेशन किसी भी काम की नहीं. और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अगर गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं हम, okay, so if we want to give everything to the people, then if population is very large, very big, okay, so government cannot provide all the facilities to the people. That's why this was factor one of the uh, objectives of eighth fire plan. Also, to encourage the program of family planning. Okay, family planning program is for control of growth of population. To remove illiteracy by expansion of primary education. हमारे देश में जो इलिटरेसी थी, जो अशिक्षित लोग थे, उनकी उनकी साक्षरता बढ़ाने के लिए, लिटरेसी बढ़ाने के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस 5 साल में एक टारगेट बनाया. ओके, सो द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वी आर स्टार्टेड डूइंग दिस प्लान. सो टू अचीव ऑल दिस ऑब्जेक्टिव सम प्रोग्राम्स वी आर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. व्हाट वाज दैट? प्रधानमंत्री रोजगार योजना. ओके, इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, पैसे आएंगे लोगों के हाथ में और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. महिला समृद्धि योजना. हमें पता है कि हमारे जो वुमेन्स, ओके, वुमेन है, उनको हमें एम्पावर करना है. इसी के लिए जो महिला है देश के, उनके नाम पे महिला समृद्धि योजना गवर्नमेंट में शुरू की. राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहायता योजना. ओके, देश भर में समाज के लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक स्कीम शुरू की. ओके, मिड डे मील स्कीम, त्याला मराठीमध्ये माध्यान्ह भोजन योजना असं म्हटलं जातं. ओके, तुम्हाला सर्वांना माहित असेल की 1ली पासून तर 10वी पर्यंत, 8वी पर्यंत आपल्या सर्वांना गव्हर्नमेंट तर्फे किंवा शाळेतर्फे जेवण मिळतं. ओके, दुपारी. ओके, तर ही जी स्कीम आहे, ओके, सो दिस वॉज द स्कीम दॅट इज मिड डे मील स्कीम, माध्यान्ह भोजन योजना असं म्हटलं जातं. इंदिरा महिला स्कीम. ओके, दिस वॉज टू एम्पावर वुमन्स. गंगा कल्याण स्कीम. ओके, जो हमारी गंगा रिवर होगी शायद, उसके कल्याण के लिए, उसके व्हाट वी कैन से रीजनरेशन के लिए स्कीम शुरू की. सो ये सारे जो स्कीम थे ये 8th 5 प्लान में शुरू किए. ड्यूरिंग द 8th प्लान द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर ग्रू. गाइस, वी नो दैट इन 1991 में क्या हुआ था, वी अलाउड प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कंट्री. ओके, privatization, globalization, and another one was liberalization. Right, not industrialization, because industrialization was starting from after the independence also. Okay, so liberalization, globalization, and privatization, ये स्कीम हमने शुरू की. That's why during 8th plan importance of private sector grew. This plan is a reflection of liberalization and free market policy adopted in the 1991. ओके, इन 1991 में हमने जो रिफॉर्म किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ओके, तो उससे कहते हैं लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी और पॉलिसी. ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द 8th 5 प्लान. ओके, ओके, यू गॉट इट गाइस?
Okay, anybody having any doubt here? Good. Now ninth five-year plan, let's see. It was from 1997 to 2002. This plan focused on agriculture and rural development. ओके, ये जो नववा प्लान था, नववी पंचवार्षिक योजना. ओके, तर या पंचवार्षिक योजनेमध्ये जास्त फोकस किंवा जास्त भर हा शेती आणि ग्रामीण विकासावर देण्यात आला. The objectives of this plan were to increase the rate of growth of economy. जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा इंक्रीज करना, मतलब हमारा इनकम जो दर साल बढ़ रहा है उसको इंक्रीज करना. क्रिएट हेल्दी कंपटीशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना. ओके, रोड्स, रेलवेज, ब्रिज बनाना जो होता है, ओके, उस प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. गिव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर इंश्योरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ओके, मतलब बाकी कंट्री के लोग हमारे देश में आकर उनकी कंपनियां खड़ी करें और हमारे देश में लोग इन्वेस्ट करें. ओके, उससे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ओके, इसकी वजह से क्या होता है, जो एमएनसी कंपनीज आती है बाहर से, तो हमारे लोगों को वहां पर काम मिलता है. ओके, हमारे यहाँ वो लोग व्यापार करते हैं. ओके, तो उसकी वजह से देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है. इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में कब आती है, अगर आपके इकोनॉमिक पॉलिसी ओके होंगी, ओके, गवर्नमेंट सपोर्टिव होगा, तो बाहर के लोग, द फॉरेन इन्वेस्टर्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडिया. ओके, एंड नाउ इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. ओके, चाइना के बाद अगर दुनिया में किसी देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होती है तो दैट इज इंडिया. ओके, इट इज एट द सेकंड प्लेस. फॉलोइंग स्कीम्स वेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान. ओके, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. ओके, सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी. ओके, राज्य राजेश्वरी महिला कल्याण योजना. ओके, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. ओके, तो ये स्कीम के नाम आपने सुने होंगे. ओके, शिक्षा के लिए भी एक योजना आई थी. ओके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. ओके, इसी योजना में हमारे गांव के जो सड़क आज ओके अस्फाल्ट, आपण त्याला मराठीमध्ये डांबरी रस्ते जो म्हणतो. ओके, तर हे डांबरी रस्ते ह्याच पिरियड मध्ये आपल्या गावांमध्ये गावोगाव झालेले आहे. ओके, so this was the schemes that were implemented in ninth five-year plan. In this plan, the progress of communication system and service sector was achieved as per the expectations. ओके, ओके, जिस प्रकार इस स्कीम में हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी, टारगेट रखे थे, तो वो टारगेट हमने कुछ अचीव किए. कौन से सेक्टर में अचीव किए? सर्विस सेक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम सर्विस में. ओके, ये जो सेक्टर थे इन्होंने अपने टारगेट मीट किए, मतलब उन्होंने अपना ग्रोथ रेट बढ़ाया. लेकिन कुछ और सेक्टर्स होंगे वो अभी भी बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे. ओके, देयर वाज अ ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन. कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन की फील्ड में भी इस साल में, इस वक्त में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई. ओके, सर्व शिक्षा अभियान जो हम कहते हैं, ओके, ये सर्व शिक्षा अभियान भी इसी वक्त में शुरू किया गया था. So this is about ninth five-year plan and guys, okay. So this was about the ninth five-year plan. So is it okay? Everything? Do you understand? Okay. ये कोई फार्मूला थोड़ी ना है. ओके, अंडरस्टैंड होने के लिए कोई कंसेप्ट थोड़ी है. दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन, राइट?
फिर भी अगर कोई डाउट होगा यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ऑलराइट। So guys, the next topic is nationalization of banks. Okay, nationalization of banks. So guys, do you know anything about it? Nationalization of bank. Nationalization का मतलब क्या होता है? Okay. Yes. Anybody else? Can anybody tell me something about it? Okay, all over the country. We need this thing all over the country. Anybody else? Okay, किसी और को पता है कुछ? Okay, fine. Yes, कादम्बरी, good. Vineet, good. Okay. So nationalization में क्या होता है? बैंक जो होती है, ओके, वो हमारे नेशन की, मतलब हमारे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। ओके, सो दिस इज द गुड आंसर। एंड वी नीड, यस, दिस इज कॉल्ड एज नेशनलिज्म, राइट। एंड it is not nationalism, it is nationalization of banks, okay, and also spread of the banks in the country. Okay, good. So guys, we will just look for it. See, during the tenure of prime ministers Pandit Nehru and Lal Bahadur Shastri, banking was a monopoly of private sector. So guys, as I told you that in the initial times हमने क्या किया था, मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी अडॉप्ट किया था। तो मिक्स टाइप इकोनॉमी में क्या था कि उसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर भी थे शामिल। हमें पता है वो मिक्स इकोनॉमी का एक सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर। उस प्राइवेट सेक्टर में क्या किया था, जब लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर थे, गवर्नमेंट की अपनी खुद की कोई बैंक नहीं थी। आज जब हम कहते हैं एसबीआई नेशनल बैंक है, ओके, पीएनबी म्हणजे पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, ओके, ये सब बैंक्स के नाम हम जब सुनते हैं तो क्या कहते हैं हम, ये नेशनल बैंक है, ओके, राष्ट्रीय बैंक इसे कहते हैं। मतलब ये बैंक टोटल गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, देयर आर टू मेनी अदर्स, ओके। तो इनिशियल टाइम में क्या था, इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। सारा जो लोन है, सारा जो बैंकिंग सेक्टर है, ये प्राइवेट जो थोडेफार लोक थे, ओके, उनके पास था, ऑलराइट। तर त्यांच्याकडेच हे सेक्टर, आणि मग हे लोक काय करायचे, ते जो व्हाट वी कैन से पुअर जो पब्लिक है, ओके, वो पुअर पब्लिक को लोन नहीं देते थे। आज जिस प्रकार हम सबको, अगर प्रॉपर क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं, ओके, तो हमें लोन मिलता है। लेकिन उस वक्त क्या करते थे, कुछ जो गिने चुने लोग थे गांव में, शहर में, सिर्फ उनको ही ये जो प्राइवेट लोग हैं वो लोन देते थे। इसलिए जो पुअर लोग थे उनका व्हाट वी कैन से दे कुडंट डेवलप देमसेल्फ, ओके, वो अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर सके। ओके, ये सिचुएशन थी कब तक, टिल द प्राइम मिनिस्टर्स पंडित नेहरू एंड द लाल बहादुर शास्त्री, ओके। सो इट वाज द मोनोपोली, मतलब उनका अपना ही एक खुद का, व्हाट वी कैन से मोनोपोली, व्हाट इट इज कॉल्ड एज मराठी, डू यू नो द मीनिंग ऑफ मोनोपोली? यस, एनीबॉडी एल्स? ओके, मोनोपोली मतलब सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, ओके, एंड पॉली मीन्स वी कैन से पॉलिसी और एनीथिंग। मतलब उस सेक्टर में वो लोग किसी और को आने नहीं देते थे, और उनका जो कुछ दो चार लोग थे उन्होंने अपना अपना बैंक निकल रखा था। इसलिए उस सेक्टर के सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ उनके उनके कंट्रोल में थी, किसको लोन देना है, कितना देना है, ओके। मराठीमध्ये आपण असं म्हणू शकतो की
त्या सेक्टरमध्ये त्यांचंच वर्चस्व होतं. ओके, और वो अपने तरीके से, मनमानी तरीके से कुछ भी किसी को भी कैसे भी लोन दे सकते थे, एक्सेप्ट पुअर पीपल. तो उस वक्त जो पंडित नेहरू आणि जवाहरलाल नेहरू थे, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री, ओके, सो इन द देयर prime minister's time, it was a monopoly of private sector. These banks represented different industrial groups. Okay, the directors of these banks were working towards developing industrial sector and increasing its profits. Okay, in order to stop this, the government nationalized the Imperial Bank in 1995. Okay, 1955. So guys, we know the banks were controlled by what we can see industrial groups only. Okay, and what they used to do, this industrial group used to give money to their industries only. Okay, and that's why poor people were not benefiting from anything. Okay, poor people were not getting the money for anything, for business, okay, for anything, and only industrial sector people were giving loan to themselves. So to stop this, okay, government started a bank, and the name of the bank was Imperial Bank. It was in 1995, in 1955. जब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके, उन्होंने एक बैंक शुरू किया उनके गवर्नमेंट ने, नेशनल इंपीरियल बैंक, एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, वो जो इंपीरियल बैंक था, ओके, उसको ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया. दिस बैंक ओपन सेवरल ब्रांचेस all over the country in a short while and played a major role in development. Okay guys, so this Imperial Bank becomes State Bank, and after the when it becomes State Bank, it was spread all over the country and it started to give loan to many people. Okay, and that's why it has played the important role in the development. Now see, background of nationalization. अभी जो प्राइवेट लोगों के पास जो बैंक्स थी, इंडस्ट्रियल जो पीपल थे उनके पास जो बैंक थी, उद्योजक थे, ओके, तो उनके बैंक का नेशनलाइजेशन क्यों किया गया, उसका जो बैकग्राउंड क्या है वो हम देखेंगे. सी, इंडिया हैड adopted a mixed economy after independence. All of you know now this. Nationalization of banks was essential to cover the deficits if they occurred while implementing different schemes. Okay guys, nationalization of bank was essential. Why was it essential? Because कोई भी कंट्री क्या करती है, कंट्री एक कंसिडर करती है कि इस साल में हमें 100 रुपए का इनकम होगा, हमारे देश को, हमारी गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 20 रुपए इस सेक्टर में खर्च करेगी, 30 रुपए उस सेक्टर में खर्च करेगी, 40 रुपए उसमें, ऐसे करके 100 रुपए वो खत्म करेगी. लेकिन क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट में जो एक्सपेक्ट किया होता है कि 100 रुपए इनकम होगा, तो कभी कभार सिर्फ 60 की 70-80 रुपए ही हो जाता है. ओके, इट बिकम्स ओनली 80 रुपीज. बट नाउ स्कीम्स आर स्टार्टेड एंड वी नीड 100 रुपीज, देन देर इज अ 20 रुपीज ऑफ डेफिसिट. ओके, तो ये डेफिसिट को गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर सकती है? गवर्नमेंट कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स. ओके, उसके लिए उसकी खुद की बैंक होनी चाहिए. ओके, सो टू कवर द डेफिसिट इफ दे ऑकर्ड, मतलब व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट स्कीम्स, अगर किसी डिफरेंट स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको ज्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन हमारे पास, गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं, तो जितना पैसा कम कर रहा है उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट के पास नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इंपॉर्टेंट था. ऑल्सो द प्रॉफिट्स ऑफ दिस बैंक्स वुड कम इनटू गवर्नमेंट ट्रेजरी. ओके, बैंक्स किस लिए चलते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए. ओके, सो if there are profits, okay, gained by the banks, ultimately it will come to the government's treasury. मतलब गवर्नमेंट के पास ही वो पैसा आएगा अगर बैंक्स को प्रॉफिट होता है, और वो पैसा गवर्नमेंट फिर अच्छे स्कीम्स के लिए यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, along with this, the policy of developing small industries and pharmaceutical industries had to be implemented. पहले हमने क्या देखा कि ये किस लिए जरूरी था? अगर किसी इसेंशियल स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास कम मनी होता है और उसको जो डेफिसिट आता है, ओके, उस डेफिसिट को अगर हमें
ओवरकम करना है तो हमारे पास बैंक होना चाहिए था। ऑल्सो बैंक जो थे वो क्या कर सकते थे, वो बिजनेस करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, और वो जो प्रॉफिट आएगा वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में आएगा। उसके बाद along with this policy of developing small industry, हमें स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे उद्योग जो होते उनको डेवलप करना था। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को भी हमें डेवलप करना था। ओके, इसके लिए उनको जो लोन देना था वो गवर्नमेंट बैंक दे सकती थी, नेशनलाइज बैंक दे सकती थी। सो लाल बहादुर शास्त्री अंडरटूक द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ऑर्डर टू ओवरकम फूड शॉर्टेजेस एंड ड्रॉट। ओके, तो हमें पता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ हमारे देश में, हरित क्रांति जो हुई, वो किस लिए थी? टू ओवरकम द फूड शॉर्टेज, हमारे देश में जो अन्न धान्य जो होते हैं उसकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने किया। ऑल्सो ये कब क्यों होता था? हमारे देश में जो ड्रॉट्स पड़ते थे, जो फाइमिन आते थे, उसको ओवरकम करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने देश में लाई। इट वाज इन द टेन्योर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। अगेन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री का जब निधन हुआ उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बने भाई? प्राइम मिनिस्टर बने इंदिरा गांधी। So in the tenure of Prime Minister Indira Gandhi, Congress Forum for Socialist Action, a group in the Congress party inspired by socialist ideas, made a demand for nationalization of commercial banks. Okay, so in the tenure of Indira Gandhi, there was one forum. That forum was working for people's uh, development, society's development. Okay, that's why it is called as Congress Forum for Socialist Action. ओके, लोगों के फायदे के लिए कुछ स्कीम्स जो चलाना है, गवर्नमेंट के जो एक्शन लेना चाहिए उसको बोलने के लिए, सॉरी उसको लेने के लिए, उसको सजेस्ट करने के लिए ये ग्रुप बनाए गए। ओके, एंड दैट ग्रुप सजेस्टेड दैट नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल मतलब जो प्राइवेट बैंक्स हमने सुना था कि देश में थे उस वक्त, उनकी मोनोपोली थी। ओके, तो ये जो फोरम था इंदिरा गांधी ने बनाया था, उन्होंने ये डिमांड की कि ये जो बैंक है उसको नेशनलाइज करना जरूरी है। ओके, जो कमर्शियल बैंक है, इवन द कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड दिस डिमांड। ओके, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी हमारे देश में उसने भी ये डिमांड को उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि वो पार्टी उस वक्त शायद शुरू शुरू में मेरा एस्टेब्लिश हुई थी शायद भारत में, और वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी। ओके, सो दिस वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड द background nationalization of banks. Now see, Prime Minister Gandhi, Indira Gandhi, okay, Prime Minister Indira Gandhi nationalized 14 banks on 19th July 1969. सी अभी इंदिरा गांधी ने 14 बैंक जो है वो नेशनलाइज कर दिए। मतलब वो क्या थे? वो पहले किसी प्राइवेट पर्सन के थे, प्राइवेट ग्रुप के थे, किसी इंडस्ट्री के बैंक थे, उसको क्या गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ओके, और उसका नेशनलाइजेशन कर लिया। अब उसका जो सब कुछ होगा वो गवर्नमेंट देखेगा। ओके, सो वो कौन कौन से बैंक थे? दिस इंक्लूड्स अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूको बैंक, ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो 14 बैंक है इसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, खरीद लिया, और उसको क्या किया? नेशनलाइज बैंक बना दिया। सिक्स मोर इन 1980s, 6 more banks वेयर अगेन नेशनलाइज। अगेन उसके बाद 11 साल के बाद 6 more banks also nationalized, मतलब उसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। Okay guys, so this was the background of nationalization. Okay, so guys, you got it, everything?
Okay, anybody having any doubt or want to ask anything more in this? Okay. Okay guys, so guys now we will see 20 point प्रोग्राम म्हणजेच 20 कलमी कार्यक्रम असं त्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं. म्हणजेच काहीतरी 20 पॉइंट आहे आणि ते जे 20 पॉइंट्स आहे ते आपल्याला ते आपले ऑब्जेक्टिव्ह आहे. 20 ऑब्जेक्टिव्ह थोडक्यात. आणि ते ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला अचीव्ह करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्कीम्स प्रोग्राम्स जे आपल्या गव्हर्नमेंटला राबवायचे होते. आता आपण बघूयात हा जो 20 पॉइंट प्रोग्राम आहे हा कोणी चालू केला. ओके, आणि त्यातील जे 20 पॉइंट्स आहेत ते कोणकोणते आहेत. ऑलराइट, मेजर 20 पॉइंट्स टोटल. Okay, okay, fine. So see, Prime Minister Indira Gandhi announced the 20-point program on 1st July 1975 and resolved to make efforts towards rapidly becoming developed nation. Okay, तो ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है वो कब अनाउंस किए गए इंदिरा गांधी के द्वारा? ओके, जो 1 जुलाई है. ओके, जुलाई महीने के पहले तारीख को इन 1975 1975 में. ओके, एंड रिजॉल्व मतलब उन्होंने संकल्प लिया टू मेक एफर्ट्स टूवर्ड्स रैपिडली बिकमिंग डेवलप नेशन. ओके, मतलब ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम थे. ओके, सो इनको अचीव करने के लिए एफर्ट्स करना ताकि हम डेवलप्ड नेशन बन सके. इसके लिए इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उन्होंने एफर्ट करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया. द मेन प्रोविजंस ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलो. ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था इसके जो मेन प्रोविजंस थे कौन कौन से थे हम देखेंगे. ओके, सी, फर्स्ट वन इज लैंड सीलिंग फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चर लैंड, इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ, मिनिमम वेज फॉर वर्कर्स. ओके, इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स. अभी ये 4 स्कीम्स दिए यहाँ पर. लैंड सीलिंग फॉर सिटीज, जो सिटीज है उनके लिए लैंड अलॉट करना, लैंड देखना कहाँ तक वो they can spread, and agriculture land. Okay, equal division of wealth. Okay, whatever the wealth in our country it should be divided into all over the country or all in the population. सभी लोगों को उसका हिस्सा मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इट इज कॉल्ड एज इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ. मिनिमम वेजेस फॉर द वर्कर्स, जो भी किसी फैक्ट्री में कई खेत में नहीं लेकिन फॅक्टरी वगैरे में काम करते थे उनके लिए मिनिमम वेजेस. ओके, म्हणजेच किमान वेतन यापेक्षा कमी वेतन लोकांना देता येणार नाही अशा प्रकारचे वेतन त्यांनी ठरवलं. increase in the water conservation schemes. We know there was drought in our country. Okay, for that purpose water conservation was very important. So for that purpose पाणी अडवा पाणी जिरवा सारख्या ज्या स्कीम्स आहे माझ्या मते, okay, such a types of schemes of water conservation were implemented or needs to be implemented in this 20 point program. Next one is workers participation in industry, national training scheme, freeing bonded labor. इट मीन्स हमारा जो वर्कर है उसका इंडस्ट्री में पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन बढ़ाना. ओके, आफ्टर दैट नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, लोगों को ट्रेन करने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए नेशनल ट्रेनिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करना. उसके बाद फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर, मतलब अब अगर किसी कंपनी में लोग अगर बॉन्ड कर कर काम कर रहे हैं, मतलब 10 साल तक यहाँ से जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, इतना ही सैलरी इसको मिलेगी. ओके, ये जो लेबर बॉन्डेड लेबर थे उनको फ्री करना. ओके, थर्ड वन इज प्रिवेंशन ऑफ टैक्स एविजन. ओके, evasion we can say. Okay, economic crimes and smuggling. So in this 20 point program this was also one of the objective that to prevent tax evasion, मतलब लोग जो टैक्स चोरी करते उसको अवॉइड करना, प्रिवेंट करना. आफ्टर दैट इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग को भी प्रिवेंट करना, उसको कम करना और होने ही नहीं देना. रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज,
हमारे जो इसेंशियल्स कम्युनिटी होती है, ओके, बेसिक नेसेसिटी होती है हमारी, उससे क्या कह सकते हैं हम, हमारी खाने की जो चीजें है, ओके, हम दूध होता है, ओके, इसको जो प्राइसेस है इसको रेगुलेट करना, ताकि वो बहुत ज्यादा बढ़ ना सके और लोगों को वो अफोर्डेबल रह सके, ताकि लोग उसे खरीदे और अपनी जिंदगी जिए। टू रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके, मतलब गवर्नमेंट की जो ये गेहूं और भात, ओके, राइस, गेहूं और राइस को लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूट करने की जो स्कीम थी, उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना, ओके, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। फिफ्थ नंबर था इम्प्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर, ओके, हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, मतलब कापड़ का जो उद्योग है हमारे देश में, कपड़ा बनाना, डिफरेंट क्लोथ्स बनाना, शर्ट पैंट साड़ी, एनीथिंग एल्स, ओके, तो उसको इम्प्रूवमेंट डेव्हलप करना कैसे, हँडलूम जो सेक्टर आहे हमाऱ्या देश का, हातमाग ज्याला म्हणतो की हातावरच गोष्टी विणल्या जातात, उसको डेव्हलप करना। वेविंग लोन्स फॉर वीकर सेक्शंस, समाज के जो वीकर सेक्शन है, गरीब लोग हैं, उनको क्या करना, सिलाई मशीन के लिए लोन देना, सिलाई उद्योग, सिलाई बिजनेस के लिए लोन देना। हाउसिंग, रहने के लिए, घर के लिए अफोर्डेबल प्राइस में आवास योजना जो स्कीम होती है, हाउसिंग स्कीम, उसको इम्प्लीमेंट करना। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को डेवलप करना। मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट अवेलेबल एट द स्कूल, स्कूल में जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको दिखाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एजुकेशनल इक्विपमेंट्स अवेलेबल करना। ये सब चीजें जो है, ओके, जो है, ये ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे 20 पॉइंट प्रोग्राम में, ओके। So guys, you understand this? Why this 20 point program was implemented by Prime Minister Indira Gandhi? Okay, and when it was done? Okay, so do you have any doubt here? Okay, good. Bhakti Ayush Kadambari, nice. Guys, the next topic is about issues of workers. देश भर जो इंडस्ट्रीज में लो वर्कर्स काम कर रहे थे, उनके क्या क्या इश्यूज थे उस वक्त, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। नाउ वी विल सी अबाउट इट, ओके। The first textile mill was started in Mumbai on 11th July 1851 by कावसजी दावर, ओके, मतलब क्या हुआ था, भारत में पहली जो टेक्सटाइल मिल है, कापड गिरणी उसे हम मराठी में बोलते हैं, ओके, तर ही कापड गिरणी मुंबईमध्ये सर्वात प्रथम आपल्या देशात चालू झाली कधी, 11 जुलै 1851, म्हणजे किती जुनी आहे, म्हणजे जवळपास 150 वर्षापूर्वी, 170 वर्षापूर्वी, okay, 170 years ago. First textile mill was started in India and it was started by कावसजी दावर और दवर वी कॅन से। हे कावसजी दवर एक गृहस्थ होते आणि त्यांनी ही जी मिल आहे ती सुरू केली, टेक्सटाईल मिल 1851 मध्ये। इव्हेंच्युअली मिल स्टार्टेड इन दादर, परळ, भायखळा, शिवडी, प्रभादेवी एंड वरळी, ओके। तो मुंबई में ये सारे नाम आपने सुने होंगे, दादर, परळी, भाईखड़ा, शिवडी, प्रभादेवी एंड वरळी। सो मुंबई में ये सब जगह पर भी इवेंचुअली मिल्स स्टार्ट हुए। दिस पार्ट कम टू नोन एज गिरगांव, गिरनगांव और टाउन ऑफ मिल्स, ओके। इस जगह पे बहुत ज्यादा मिल्स शुरू हुए, बहुत ज्यादा गिरनियां खड़ी हुई, इसलिए उससे कहते हैं गिरनगांव, क्योंकि वहां पर टेक्सटाइल की गिरनियां हुआ करती थी। एंड टाउन ऑफ मिल्स, हिंदी में, अंग्रेजी में उससे कहते हैं टाउन ऑफ मिल्स, मतलब मिल्स का सिटी और गांव।
इन 1980s 1880 में 1980 में इन 1980s the increasing unrest among workers was due to the economic conditions in other sectors. 1980 में क्या हुआ था? There was increase in unrest among the workers, means the workers that were working in these mills, they were anxious, they were worried. Okay, it is because of इकोनॉमिक कंडीशंस इन अदर सेक्टर. ये जो टेक्सटाइल सेक्टर था, इनके अलावा देश में दूसरे सेक्टर्स थे, उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो कंडीशन है, वो देख के ये जो मिल के वर्कर थे वो भी ज्यादा नाराज हो गए. इन सम इंडस्ट्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स वेर इंक्रीजिंग. ये जो अदर सेक्टर की जो कंडीशन थी उसमें क्या हुआ था, जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे लोग, उनके जो वेजेस थे वो बढ़ रहे थे, उनकी जो सैलरी थी वो बढ़ रही थी. They were also getting more amounts of bonus. उनको दिवाली में बहुत ज्यादा बोनस भी मिला करता था बाकी इंडस्ट्री में. ओके, लेकिन मिल के जो वर्कर थे उनको नहीं मिलता था. They were getting more facilities than the textile mill worker. और उन लोगों को टेक्सटाइल मिल के वर्कर जो थे उनसे ज्यादा फैसिलिटी मिल रही थी. ठीक है. इन द दिवाली ऑफ 1981 1981 की जो दिवाली थी, अक्टूबर नवंबर में होगी शायद, उसमें क्या हुआ था, दी वर्कर्स एक्सपेक्टेड टू गेट अ बोनस ऑफ 20%. मतलब उन लोगों को ऐसा लगा कि हमें 20% इस साल बोनस मिलेगा. ओके, मतलब अगर किसी को इस साल 81 में जो बोनस मिलेगा वो पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा होगा, या उनकी उस साल का जो इनकम है उसके 20% मिलेगा. ठीक है. द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ which was negotiating with the employers agreed upon 8 to 17% bonus without taking the workers into confidence. मतलब क्या हुआ, ये वर्कर्स की एक संघ था, एक यूनियन था, उसका नाम था राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ. उन्होंने क्या किया, जो गिरनी के मालिक थे, जो इंडस्ट्री के मालिक थे, उनको उनके साथ उन्होंने निगोशिएट किया, उनके साथ उन्होंने बातचीत की कि ठीक है 20, वो जो इंडस्ट्री के मालिक थे कंपनी के, उन्होंने कहा कि हम 20% नहीं दे सकते ओके मजदूरों को बोनस. लेकिन ये जो राष्ट्रीय मजदूर मिल संघ है, ओके राष्ट्रीय मजदूर संघ है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्री किया कि 8 से 17% तक बोनस हम लेंगे. ओके, आप अगर 8 से 17% तक बोनस देंगे वो भी हम लेंगे. लेकिन ये जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ था, उन्होंने अपने वर्कर को ही कुछ पूछा नहीं इसके बारे में. वर्कर तो कह रहे थे 20% हमें चाहिए, लेकिन उनकी जो एजेंसी थी, वो एजेंसी ने अपने आप में ही इनको न बताते हुए कहा कि ठीक है आप 8% से 17% तक इस वर्कर को दे दो. इसकी वजह से वो जो वर्कर थे वो नाराज हो गए. ओके, उन्होंने वर्कर को विश्वास में नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया. द कट इन द बोनस प्रूव टू बी कॉज ऑफ अनरेस्ट. अभी ये जो कहाँ पर 20% मिलने वाला था 20%, और कहा ये 8 से 17% मिलेगा. ओके, इसकी वजह से जो कट मिला लोगों को उसकी बोनस में, इस बोनस की वजह से वर्कर्स थे उनमें एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ, उन्होंने एक उनके इन्हें एक एंगर क्रिएट हुआ. सम वर्कर्स वेंट टू डॉक्टर दत्ता सामंत. Okay, Danta Samant was a big personality over there. He was a social worker at that time. Okay, so many workers went to Dr. Datta Samant that we want 20% bonus and they are just giving us 8 to 17%. Okay, workers of 65, so they asked him to accept their leadership. उन्होंने क्या किया, वो वर्कर ने बोला कि दत्ता सामंत जी, डॉक्टर जी, हमारी लीडरशिप आप ले लीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे, आप हमारी जो डिमांड है वो 20% के बोनस की हमें वो लोगों के साथ और गवर्नमेंट के सामने और एम्प्लॉयर के सामने, कंपनी के मालिक के सामने बता दीजिएगा, हम आपको हमारा लीडर मानते हैं. वर्कर्स ऑफ 65 मिल्स कम टुगेदर एंड डॉक्टर दत्ता सामंत लेड द स्ट्राइक. तो ये जो वर्कर है 65 मिल्स के उस वक्त के, वो स्ट्राइक पर गए, मतलब उन्होंने हड़ताल की. ओके, और दत्ता सामंत की नेतृत्व में.
On the 18th January 1982, 2.5 lakh workers went on strike. 2.5 मतलब 2.5 लाख लोग, 2,50,000 लोग जो मिल में काम कर रहे थे वो स्ट्राइक पर गए. गिरनगांव मिल स्टॉप्ड रनिंग, मेकिंग इट सीम लाइक मुंबई's हार्ट स्टॉप्ड थ्रॉबिंग. जो ये 2.5 लाख वर्कर काम करने थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया. उसकी वजह से क्या होगा, वो जो गिरनगांव जो था उसमें क्या किया, जो मिल्स थे उन्होंने वर्किंग स्टॉप किया. वो जो चल चल रहे थे वो बंद किया क्योंकि काम के लिए लोग ही नहीं है. ओके. और उसकी वजह से ऐसा लगा कि हमारी जो मुंबई है उसका जो हार्ट है वही रुक गया है, क्योंकि ये जो मिल चलती थी वो 24 घंटा चलती थी, वो 24/7 चलती थी. ओके. इसलिए आपको कभी भी मुंबई में उस वक्त क्राउड मिलने देखने को मिलनी थी. लेकिन जब वो स्ट्राइक पर गए तो वो सब कुछ बंद हो गया. ओके. Okay, so guys, do you understand this up to now? Okay. ये आपको मिल वर्कर के जो इश्यूज है वो कैसे कैसे डेवलप हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ना. कैसे वो पहले अनरेस्ट पे थे, उसके बाद उनको बोनस नहीं दिया, उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया. उन्होंने सिर्फ लीडरशिप एक्सेप्ट कर ली दत्ता सामंत की. उनको कहा कि हमारी डिमांड आप पूरी कर दीजिए और गवर्नमेंट के और उसके साथ बता दीजिए एम्प्लॉयर को. ओके. ओके. सो आज के लिए तो बस हम इतना ही करेंगे. ओके. बाकी का जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे. ओके गाइज. तो अब तक के लिए आप सबको थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड गुड बाय टू एवरीवन, गुड नाइट. एंड हम आज यहाँ पर रुकते हैं. ओके. आप अभी क्लास छोड़कर जा सकते हैं. गुड नाइट टू एवरीवन. ओके. थैंक यू एवरीवन. कादम्बरी. ओके. ओके Kadambar, thank you. You can leave the class now.